After completing exercise 6.1 and 6.2, now we'll proceed with the short answer question. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे पहले जो हम करेंगे वो हम करेंगे सैंपल क्वेश्चन 1. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड विद सैंपल क्वेश्चन 1. देखो सैंपल क्वेश्चन 1 क्या है आपका. इन फिगर 6.7 दिस इज द फिगर ए बी सी डी एंड ई एफ. ए बी सी डी एंड ई एफ are three lines concurrent at O. Concurrent का मतलब three lines intersecting at one point, that is at point O. Find the value of y. हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है. We have to find the value of y. तो देखो, this is the given figure. First of all, what we will do? Can I say that angle BOF, this one here, angle BOF is equal to angle EOA. Why? Vertically opposite angle. ये बात समझ में आ रही है. ठीक है. देन तो ये अगर 5 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 5. ठीक है. नाउ एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल EOA प्लस एंगल AOD is equal to 180 degree. Why so? Angle on straight line. एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन. ये क्लियर हो गया. ठीक है. अब आप ये देखो एंगल COE. तो एंगल COE क्या है हमारा 2y. EOA हमारा क्या है 5y प्लस AOD ये है हमारा 2y and it is equal to 180 degree. It is equal to 180 degree. 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, which implies 9y is equal to 180 degree. तो y equal to क्या हो जाएगा 180 by 9 equal to 20 degree. ये समझ में आ गया. ठीक है. और हमें फाइंड भी क्या करना था वैल्यू ऑफ y. तो आंसर इज value of y will be equal to 20 degree. This is the complete answer of this question. Okay. So next question is sample question 2. Question is in figure 6.8 x is equal to y. आपको कहा जा रहा है जो x है वो y के इक्वल है एंड a is equal to y. और a जो है वो किसके इक्वल है y के. एंगल x equal to एंगल y एंड एंगल a equal to एंगल b. Prove that L is parallel to N. L is parallel to N. That's what we have to do. That's what we have to do. देखो, first of all, can I say that x is equal to y? ये क्या है आपको given? Can I say that x and y are corresponding angle? But x and y are corresponding angle. और अगर x और y corresponding angle है तो corresponding angles lie between the parallel lines. इसका मतलब क्या हुआ? It implies L is parallel to M. It implies L is parallel to M. ये चीज समझ में आ रही है. ठीक है. Then A is equal to B. A is equal to B. Now A is equal to B. Again given. A is equal to B given again. But A and B are corresponding angle. A and B are corresponding angle. इसका मतलब क्या? इसका मतलब M will be parallel to N, which implies M is parallel to N, right? Now L is parallel to M and M is parallel to N. इसका क्या मतलब हुआ भाई? L भी M के पैरेलल है और N भी M के पैरेलल है. तो इसका मतलब क्या? It implies L is parallel to N. Why? Because if two different lines are parallel to same line, then
these two different lines are also parallel to each other, are also parallel to each other. भैया अगर दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो लाइंस भी आपस में क्या होती है, पैरेलल. ओके. Our next question is क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3. अब हम एक्सरसाइज 6.3 से प्रोसीड करेंगे. देखो क्वेश्चन क्या है आपका. योर क्वेश्चन इज इन फिगर 6.9 दिस इज द फिगर. OD is the bisector of angle AOC. OD is the bisector of angle AOC. तो can I say that ये हो गया आपका एंगल AOC. अगर OD इसको बाइसेक्ट कर रहा है, if OD is bisecting angle AOC, then these two half angles will be equal. अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि एंगल AOC, मैं क्या सकता हूँ, एंगल AOC विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल DOC. इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है. देन OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC. ये आपका OE एंड इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC. तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, हाफ हाफ इक्वल होंगे. इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि एंगल BOC, एंगल BOC विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल COE. ये भी समझ में आ रही है बात, ठीक है. OD इज परपेंडिकुलर टू OE. ये आपका OD है और ये किस पर परपेंडिकुलर है, OE. इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. और ये एंगल कौन सा हो गया, DOE. ये क्या है आपका 90 डिग्री, ठीक है. शो दैट AOB आर कोलिनियर. अब अगर मुझे ये प्रूव करना है कि AOB कोलिनियर है तो मुझे क्या प्रूव करना होगा, आई हैव टू प्रूव दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये पूरा एंगल मेरा, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए फिर, 90 डिग्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू प्रूव दैट AOB, जो AOB एंगल होगा इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है. तो मुझे क्या प्रूव करना होगा कि एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखो कैसे प्रूव करें. फर्स्ट ऑफ ऑल as OD and OE are bisector of angle AOC, and angle BOC respectively. It implies, देखो ये हो गया आपका एंगल AOC और OD इसको बाइसेक्ट कर रहा है. OD इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. What we can say that angle AOC is equal to twice of angle DOC. Twice of angle DOC. Let it be question number 1. And angle BOC is equal to twice of angle COE. ये बात समझ में आ रही है भाई. दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं तो कंप्लीट एंगल जो होगा इसके डबल के इक्वल होगा. इसी तरह से ये जो कंप्लीट एंगल होगा वो इस एंगल के डबल के इक्वल होगा, ट्वाइस के इक्वल होगा. Then according to the question OD is perpendicular to OE. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल होगा हमारा एंगल DOE ये कितना होगा हमारा, 90 डिग्री. इट इम्प्लाइज एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये भी क्लियर हो गया, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, एडिंग इक्वेशन 1 and 2. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू, देखो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एंगल DOC प्लस एंगल CO. राइट. तो ये क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ.
देखो डीओसी प्लस सीओई, अब ध्यान से देखो, ये एंगल है आपका डीओसी प्लस सीओई, तो ओवरऑल ये एंगल क्या हो गया डीओई, मैं बोल सकता हूँ ओवरऑल ये एंगल क्या हो गया डीओई, तो ये हो गया आपका डीओई। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो डीओई किसके इक्वल है 90 डिग्री, इट इम्प्लाइज एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 2 × 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब देखो एओसी प्लस बीओसी, एओसी एओसी दिस वन एओसी प्लस बीओई, ये क्या फॉर्म हो रहा है लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, इट इम्प्लाइज एओसी एंड बीओसी forms forms a linear pair, forms a linear pair। इसका मतलब क्या है therefore AOB is a straight line, AOB is a straight line, और अगर ऐसा है तो hence A, O and B are collinear points, are collinear points, यही हमें प्रूव करना था। A, O and B are collinear points, तो कैसे प्रूव किया, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि OE जो है बाइसेक्टर है एंगल बीओसी, OE जो है वो बाइसेक्टर है एंगल बीओसी, और क्या गिवन था OD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल एओसी का, OD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल एओसी का। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज द थर्ड इंफॉर्मेशन, दैट OD इज परपेंडिकुलर टू OE, इसका मतलब ये जो एंगल है DOE ये 90 डिग्री, इसी का हमने यूज किया। हमने क्या कहा कि भैया अगर ये OD बाइसेक्टर है तो एंगल AOC जो होगा वो ट्वाइस ऑफ DOC के इक्वल होगा, और अगर OE बाइसेक्टर है तो एंगल BOC जो होगा, जो एंगल BOC होगा वो ट्वाइस ऑफ क्या होगा COE। हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ऐड करके राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला DOE विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब हमने ऐड किया तो वो ट्वाइस ऑफ 90 हो गया, तो ये हो गया 180। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो है आपका एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं एंगल एओसी और बीओसी, और लीनियर पेयर का मतलब फिर एओबी क्या है आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कब होती है, जो भी स्ट्रेट लाइन में जो भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या होता है कोलिनियर, तो ए और बी ये तीनों जो पॉइंट्स है हमारे वो क्या होंगे कोलिनियर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। Now our next question is question number 2। In figure 6.10 angle 1 is equal to 60 degree। ये जो एंगल 1 है आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो एंगल 1 है आपका ये 60 डिग्री, ओके। एंगल 6 इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल 6 is equal to 120 degree, then show that the line M and N are parallel। What we have to prove, we have to prove that M is parallel to N। What we have to, first of all, given what has been given in the question, that angle 1 is equal to 60 degree and angle 6 is equal to 120 degree, then to prove, what we have to prove here, that M is parallel to N, M is parallel to N। Now prove, see first of all, can I say that angle 6 plus angle 5 is equal to 180 degree? Why? Linear pair, right? Now according to the question, angle 6 is 120 degree, that is 120 degree plus angle 5 is equal to 180 degree। It implies what? It implies angle 5 is equal to 180 degree minus 120 degree, that is 60 degree, that is 60 degree। अब देखो एंगल 5 आपका आ गया 60 डिग्री, राइट। अब एंगल 560, एंगल 160, नाउ एंगल 5 is equal to एंगल 1 is equal to 60 degree each, but angle 5 and angle 1 are corresponding angle, are corresponding angle। आप देख सकते हो ये एंगल 5 है और ये एंगल 1 है,
on the same side of transversal, one is interior and one is exterior. Pair of angle on the same side of transversal, one is interior and one is exterior. क्या होते हैं ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके? These are corresponding angle, and corresponding angles always lie between parallel lines, which implies M is parallel to N. Hence, is it clear? ठीक है. Now the next question is question number 3. Question is AP and BQ are bisector of two alternate interior angle. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो AP जो है आपका वो बाइसेक्टर ऑफ टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से है यहाँ पर? एंगल, इसको अगर हम कोई नाम दे दें, जैसे कि मान लो इस पूरे एंगल को मैं ले लेता हूँ एंगल 1. इस पूरे एंगल को हमने क्या ले लिया? एंगल 1. लेट अस अज्यूम दैट दिस एंगल इज एंगल 1 एंड दिस एंगल इज एंगल 2. तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. आपको कहा जा रहा है ये जो दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 का जो बाइसेक्टर है वो है AP, और BQ जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल 2. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? गिवन क्या है आपको? व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. alternate interior angles. AP and BQ are bisector of angle 1 and angle 2 respectively. Are bisector of angle 1 and angle 2 respectively. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखो, अगर AP बाइसेक्टर है एंगल 1 का, अगर AP बाइसेक्टर है एंगल 1 का, तो कैन आई से दैट हाफ ऑफ एंगल 1 विल बी इक्वल टू PAB. देखो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ ये करना है R2 bisector of alternate interior angle formed by the intersection of transversal T. T is the transversal with parallel lines L and M. According to the question, L और M जो है वो आपकी parallel lines. Show that AP is parallel to BQ. अब AP BQ के पैरेलल है, इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो एंगल है आपका, लेट इट बी एंगल 3 एंड एंगल 4, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि एंगल 3 और एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज लाई बिटवीन द पैरेलल लाइंस. इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस एंगल बी एंगल 3. ये PAB को मैंने क्या ले लिया? एंगल 3, और QBA को मैंने ले लिया एंगल. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट L is parallel to M. We have to prove that L is parallel to M. Then prove. First of all, can I say that let angle 3 is equal to angle PAB and angle 4 is equal to angle QB. ये क्लियर हो गया? ठीक है. Now एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. भाई ये पूरा एंगल हमने एंगल 2 लिया है, तो पूरा एंगल हमारा क्या है? एंगल 2. जो एंगल 1 है हमारा वो क्या है? जो एंगल 1 है हमारा, इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई नेम दे देता हूँ, एक्स. तो एंगल XAB, एंगल 1 क्या है हमारा? XAB. और एंगल 2 हमारा क्या है? ABM. AB, और यहाँ पर भी कोई नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं Y. ABY. L और M तो आपकी लाइंस है, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया X और एक पॉइंट ले लिया Y. जो भी आप चेंजेस करोगे फिगर में शो करना. तो आप कहोगे लेट एंगल XAB इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल ABY एंड एंगल ABY. लेट एंगल XAB बी इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल ABY इज इक्वल टू एंगल 2. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्वेश्चन में गिवन है. अब दो एंगल इक्वल है, कैन आई से दैट हाफ ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2. कि एंगल 1 का जो हाफ होगा वो एंगल 2 के हाफ के इक्वल होगा. अब देखो, अगर एंगल 1 ये आपका ये पूरा एंगल है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये पूरा एंगल आपका क्या है? एंगल 1.
और पी ए इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हाफ ऑफ एंगल इक्वल होगा। तो कैन आई से दैट एंगल 1 का जो हाफ है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, और ऐसी एंगल 2 का जो हाफ है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है? इस पूरे एंगल का हाफ करोगे तो मैं कैन आई से दैट एंगल 1 का जो भाई हाफ ऑफ एंगल 1 अगर आपका 60 है तो एंगल 3 क्या होगा? हाफ ऑफ 60, दैट इज 30। तो एंगल 1 का जो हाफ है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, ऐसी एंगल 2 का जो हाफ है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। तो हमने यही बात बोली यहाँ पर कि हाफ ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल। अब हाफ ऑफ एंगल 1 को हमने क्या लिखा? एंगल 3। हाफ ऑफ एंगल 1 को हमने क्या लिखा? एंगल 3। और हाफ ऑफ एंगल 2 को हमने लिखा एंगल। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। बट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट alternate interior angles, which implies which implies what? Which implies जो हमें प्रूव करना है that AP is parallel to, which implies that AP is parallel to BQ, which implies that AP is parallel to BQ। हमें प्रूव करना है AP is parallel to BQ, AP is parallel to BQ। भैया आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल है आपका, आपने प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल है आपका, व्हाट वी हैव प्रूव हियर, ये जो एंगल है हमारा वो इस एंगल के इक्वल है। एंड दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज लाई बिटवीन द पैरेलल लाइंस। इसका मतलब पीए क्या होगा? बीक्यू के पैरेलल होगा। इट मींस व्हाट? इफ एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इट मींस PA is parallel to BQ, PA या AP is parallel to BQ। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। हैंस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, आपको एक फिगर गिवन है 6.11, बाइसेक्टर AP एंड BQ, बाइसेक्टर AP एंड BQ ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। आपको क्या गिवन है? बाइसेक्टर AP एंड PQ। देखो AP और BQ जो ये बाइसेक्टर है ये पैरेलल है, मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट हैज बीन गिवन, ये आप ऐसे समझो प्रीवियस क्वेश्चन का कन्वर्स है कि जो आपका AP है वो पैरेलल है BQ, आपका AP है वो पैरेलल है BQ पे। तो कैन आई से दैट अगर ऐसा है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, which implies angle 1 is equal to angle 2, that is alternate interior angle, that is alternate interior angle। ठीक है। अब अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो कैन आई से दैट ट्वाइस ऑफ एंगल 1 शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। होगा ऐसा? अब इसका डबल क्या होगा? इसका डबल होगा आपका, अगेन इसको मैं x ले लेता हूं और इसको आप ले लो y। ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्या हो जाएगा? एंगल XAB, एंगल XAB। और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एंगल ABY, एंगल ABY। अब क्यों ऐसा होगा? बिकॉज AP and BQ are bisector of angle XAB and angle ABY रिस्पेक्टिव। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो ये जो दो एंगल है आप, दीज टू एंगल्स आर, बट एंगल XAB equal to angle ABY, but angle XAB and angle ABY are alternate इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और अगर ऐसा होगा तो आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर तो क्या होगा? एल जो है आपने प्रूव कर दिया कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब क्या? कि जो एल है हमारा वो किसके पैरेलल होगा? एम के। देयरफॉर एल इज पैरेलल टू एम। हैंस
ये समझ में आ रही है बात? इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. In figure 6.12, this is the figure. BA is parallel to ED. According to the question, BA is parallel to ED. ठीक है? And BC is parallel to EF. BC is parallel to EF. Show that angle ABC is equal to angle DE. Show that angle ABC is equal to angle DE. First of all, we will write the given information. What has been given? That BA is parallel to ED. ये समझ में आ रहा है? And BC is parallel to E. ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपको इसको प्रूव करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? वी विल प्रोड्यूस DE, डॉटेड बनाओगे ऐसे DE. वी विल प्रोड्यूस DE टू G पॉइंट. प्रोड्यूस DE टू G पॉइंट. डी को आपने प्रोड्यूस कर दिया जी तक. अब देखो, अगर DE जो है वो AB के पैरेलल है तो उसको जितना मर्जी आप एक्सटेंड करोगे वो उसके पैरेलल ही रहेगी. इसका मतलब क्या? नाउ कैन आई से दैट, देखो AB इज पैरेलल टू DE. इसका मतलब क्या? कि AB इज पैरेलल टू DG. भाई AB अगर DE के पैरेलल है तो AB DG के भी पैरेलल होगा, क्योंकि G जो DE पर ही एक पॉइंट है आपका. तो D इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DG. AB इज पैरेलल टू DG. ये क्लियर हो गया? AB इज पैरेलल टू DG. ठीक है. अब इसको हम ले लेते हैं एंगल 1, इसको ले लेते हैं एंगल 2 और इसको ले लेते हैं एंगल 3. ठीक है. अब AB जो है DG के पैरेलल है तो आपका ये जो BG है या BC है एंड BC इज ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल हो गया. ये क्या हो गया आपका? ट्रांसवर्सल. In that case, can I say that angle 1 is equal to angle 2, which implies angle 1 is equal to angle 2 by corresponding angle. By corresponding angle. Angle 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के इक्वल होगा, corresponding angle. ठीक है. Now EF is parallel to BC. जो आपका EF है वो किसके पैरेलल है? BC के. ठीक है. और मैं कह सकता हूं GD is transversal and GD is transversal and GD is transversal. In that case, can I say that angle 2 is equal to angle 3? Angle 2 is equal to angle 3 by again corresponding angle. इसको आप ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो आप इक्वेशन 2. Can I say that from 1 and 2, from 1 and 2, angle 1 is equal to angle 2 and angle 2 is equal to angle 3. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ, इट मींस एंगल 1 is equal to एंगल 3. एंगल 1 जो है आपका, एंगल 1 देखो ये एंगल 1 है. एंगल 1 क्या हो गया? ABC. एंगल 1 क्या हो गया आपका? ABC, दैट इज ABC. और एंगल 3 क्या हो गया आपका? DEF. DEF समझ में आ रहा है? ठीक है भाई. जो आपका एंगल 1 है वो क्या हो गया? ABC. और जो आपका एंगल 3 है ये क्या हो गया? DEF. तो ये आपको प्रूव करना था ABC इज इक्वल टू DEF. तो आप कैसे लिखोगे? इट इंप्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF. जो हमारा एंगल ABC है वो किसके इक्वल होगा? DEF के. दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. हेंस इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. देखो क्वेश्चन क्या है आपका? योर क्वेश्चन इज इन फिगर 6.13. दिस इज द फिगर. BA is parallel to ED. What has been given in the question? That BA is parallel to ED. BA किसके पैरेलल है आपका? ED. And BC is parallel to EF. And BC is parallel to EF. ये क्लियर हो गया? ठीक है. Now what we have to prove? To show or to prove. We have to prove that angle ABC
प्लस एंगल DEF इक्वल टू 180 डिग्री। आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने शायद टू प्रूफ नहीं लिखा है, वो मैं लिख लेता हूँ। यस, यहाँ हमने टू प्रूफ नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5। गिवन के बाद पहले आपको टू प्रूफ लिखना होता है, मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। बट वी हैव टू प्रूव हियर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DE। तो फर्स्टली आप गिवन लिखोगे, फिर टू प्रूफ लिखोगे, फिर आप कंस्ट्रक्शन करोगे, और फिर आपका ये प्रूफ शुरू हो। ठीक है। चलो जी, अब इसको प्रूव करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो वो हो गया आपका पॉइंट 3, दैट इज कंस्ट्रक्शन। पॉइंट 1 क्या, गिवन। पॉइंट 2 टू प्रूव। पॉइंट 3 क्या होता है आपका, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, प्रोड्यूस ED टू G, प्रोड्यूस ED टू G such that EG is parallel to AB। भैया अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपका ED BA के पैरेलल है, तो EG जो है, EG वो भी AB के पैरेलल होगा। इसी समझ में आ रही है, ठीक है। चलो जब प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना। तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारा, फोर्थ पॉइंट विल बी ट्रू। नाउ कैन आई से दैट एज AB is parallel to EG and BC is transversal and BC is ट्रांसवर्सल। इसको मैं एंगल 1 ले रहा हूं, ये एंगल 2 हो गया और ये एंगल 3 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। बाय सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा, इसके बाद नाउ EF इज पैरेलल टू BC। अब आप क्या लिखोगे, नाउ EF इज पैरेलल टू BC। अब आप ये देखो, देखो ये पॉइंट आपका क्या है, 2 और 3। इसको आपने 2 लिया है, ये आपका 3 है। अब अगर ये इसके पैरेलल है, तो ये जो आपका EG है, ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो EG क्या होगा, ट्रांसवर्सल, एंड EG इज ट्रांसवर्सल। समझ में आ रहा है। EF is parallel to BC and EG is transversal. EG is transversal. In that case, can I say that angle 3 or angle 2, these are co-interior angle? भाई दो पैरेलल लाइंस पर ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है, उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो कैन आई से दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 which implies angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree by so co-interior angle। अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, which implies angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree। why? because angle 2 is equal to angle 1। अब जो आपका एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, वो है क्या, वो है ABC। और जो आपका एंगल 3 है, वो क्या है, DE है। कैसे, देखो ये हो गया एंगल 1। एंगल 1 को मैंने लिखा ABC, एंगल 1 को मैंने लिखा ABC। और एंगल 3 को पहले तो आप ये लिखो, ये हो गया FEG प्लस एंगल FEG इक्वल टू क्या, 180 डिग्री, विच इंप्लाइज एंगल ABC। भाई जो आपका FEG है, देखो ये आपका FEG है, राइट। तो कैन आई से दैट DEF भी तो यही एंगल हुआ, जिसको आप FEG कह रहे हो, वही सेम एंगल आपका क्या है, DEF। देखो बात तो इसी एंगल की हो रही है। तो मैं FEG की जगह क्या लिख सकता हूँ, DEF। क्या लिख सकता हूँ, DEF।
तो एफईजी को हम क्या लिख सकते हैं, DEF इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल FEG इज इक्वल टू एंगल DEF, हेंस क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन फिगर 6.14 दिस इज द फिगर DE is parallel to QR। क्या कहा जा रहा है, DE is parallel to QR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल given information is that DE is parallel to QR, then AP and BP are bisector of angle EAB and RBA। AP and BP are bisector of देखो ये आपका AP है, राइट। AP किसका बाइसेक्टर हुआ, आपका EAB ऑफ एंगल EAB, और बीपी किसका बाइसेक्टर हुआ, ये हो गया आपका EAB, और बीपी किसका बाइसेक्टर हुआ, ABR या RBA, एंड एंगल RBA एंड एंगल RBA रिस्पेक्टिव। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है आपको, फाइंड एंगल APB, फाइंड एंगल APB, ये एंगल हमें फाइंड कर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको कहा गया D इज पैरेलल टू QR, DE इज पैरेलल टू QR। अगर DE जो है आपका वो QR के पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूं N इज ट्रांसवर्सल एंड लाइन N इज ट्रांसवर्सल। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इन दैट केस कैन आई से दैट एंगल EAB, इट इंप्लाइज एंगल EAB प्लस एंगल ABR, या आप इसको लिखो RBA, वो आपकी मर्जी, प्लस एंगल RBA इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल। ये समझ में आ रहा है। नाउ कैन आई से दैट हाफ ऑफ एंगल EAB प्लस हाफ ऑफ एंगल RBA इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल EAB, अब देखो EAB इसका हाफ करो, इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा आपका PAB, एंगल PAB, और RBA। अब RBA का अगर मैं हाफ कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं एंगल PBA, एंगल PBA, और 180 का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा 90, 180 का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा 90। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ABP, in triangle APB, can I say that angle APB plus angle PAB plus angle PBA is equal to 180 डिग्री। भाई यही होगा ना आपका, देखो एंगल APB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल PAB, ये कितना होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखो ये हो गया एंगल APB प्लस फ्रॉम इक्वेशन 1 कैन आई से दैट ये जो वैल्यू है आपकी इट इज 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय, या फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एंगल APB क्या होगा, APB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। Find angle APB. Find angle APB. It is equal to 90 degree. And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Okay. Now next question is question number 8. Question is
The angle of a triangle are in the ratio 2:3:4. Find all that. Find the angles of triangle. देखो सिंपल क्वेश्चन है, जब भी एंगल रेशियो में गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, लेट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बी। एक एंगल हम ए ले लेते हैं विच इज इक्वल टू 2x, एक एंगल बी हो गया विच इज इक्वल टू 3x, एंड एक एंगल सी हो गया विच इज इक्वल टू 4x रिस्पेक्टिव। ठीक है, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री बाय 100। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए की वैल्यू क्या है आपकी 2x, एंगल बी की वैल्यू क्या है हमारी 3x, और एंगल सी की वैल्यू क्या है 4x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 4x प्लस 3x 7 और 2 9, 9x इक्वल टू क्या 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 बाय 9 दैट इज 20। ठीक है, अब जो हमारे तीन एंगल थे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए क्या था 2x, 3x और 4x। अब जो 2x है वो हो जाएगा 2 × 20 दैट इज 40 डिग्री, जो 3x है वो हो जाएगा 3 × 20 दैट इज 60 डिग्री, जो 4x है वो हो जाएगा 4 × 20 दैट इज 80 डिग्री। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज a triangle ABC is a right angle at A. Let us assume that this is a right triangle. Okay. Triangle ABC is a right angle at A. तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया हमारा पॉइंट C। ठीक है, then L is a point on BC such that AL is perpendicular to BC। तो कोई एक पॉइंट हमने ले लिया that L is a point on BC such that L is a point on BC such that AL is perpendicular on BC। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है आपके, ये दोनों ही एंगल आपके क्या होंगे 90 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट ABC इज राइट, ABC इज राइट एंगल एट ए। ये समझ में आ गया, ठीक है। एंड व्हाट हैज बीन गिवन AL इज परपेंडिकुलर टू BC, AL इज परपेंडिकुलर टू BC। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove that angle BAL, angle BAL is equal to angle ACB, angle BAL, angle BAL this one is equal to angle ACB this one। ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, हमें प्रूव करना। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल BAL मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आपको, इन ट्राइंगल BAL दिस वन, इसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर, इन ट्राइंगल BAL देखो ये जो एंगल होगा इसमें एंगल ALC, एंगल ALC ये एक्सटीरियर एंगल होगा, एंड बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल ALC शुड बी इक्वल टू एंगल BAL प्लस एंगल ABL। रीजन एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, रीजन क्या होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, देन नाउ इन ट्राइंगल ABC मैं इस फिगर को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं।
right? Now in triangle ABC क्या होगा? एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल ACB और प्लस एंगल ABC इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो एंगल ए तो हमारा 90 है, तो BAC को मैं क्या लिखूं? 90 प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कैन आई से दैट एंगल ACB प्लस एंगल ABC it will be equal to 90 degree. It will be equal to 90 degree. That it be question 1. That it be question 1. देखो क्वेश्चन 1 से पहले हम एक काम इसमें और कर सकते हैं. What we can do now? देखो ALC है कितना आपका? ALC ये वाला एंगल 90 है हमारा. ये देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. इट इम्प्लाइज एंगल BAL प्लस एंगल ABL इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ दैट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. अब देखो ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2 फ्रॉम 1 एंड 2. तो दो इक्वेशन की अगर राइट हैंड साइड आपकी सेम है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी इक्वल. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा आपका? एंगल BAL प्लस ABL, एंगल BAL प्लस ABL शुड बी इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ABC. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. अब देखो इट इम्प्लाइज एंगल BAL. अब ध्यान से देखो, जो आपका एंगल ABL है, जो आपका एंगल ABL है, वो ये है आपका. वही सेम एंगल आपका ABC नहीं है भाई? ABL भी आपका यही एंगल है और ABC भी आपका सेम एंगल है. इट मीन दीज टू एंगल आर इक्वल. और अगर इक्वल है तो देखो पहले तो मैं ABL को ABC लिख देता. इक्वल टू ACB प्लस ABC. बाय बिकॉज एंगल ABL इज इक्वल टू एंगल ABC. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. देन एंगल ABC and ABC will be cancel out. So what we will have now? Angle BAL is equal to angle ACB. यही प्रूव करना था हमें. एंगल BAL is equal to angle ACB, right? Hence is it clear? ठीक है. The next question is question number 10. Question is, two lines are respectively perpendicular to two parallel lines. First of all, let us assume these are the two parallel lines. These are the two given parallel lines. And then these are the two perpendicular lines. Now according to the question, देखो ये हो गया L, ये हो गया M. Let it be line P, let it be line Q. Right. What has been given in the question? That L is parallel to M and P is perpendicular to L and Q is perpendicular to M. In that case, what we have to prove? We have to prove that P is parallel to Q. We have to prove that P is parallel to Q. अब देखो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. अब उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. We will do the construction. We will do the construction.
extend line P up to point X and extend line Q up to point Y. Extend line P to X and extend line Q to Y. ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इन दैट केस देखो, अब L जो है आपका वो किसके पैरेलल है? M. L इज पैरेलल टू M. L किसके पैरेलल है आपका? M के. नाउ L इज पैरेलल टू M. L किसके पैरेलल है? M के. L जो लाइन है वो M के पैरेलल है. इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. अगर L M के पैरेलल है तो क्या मैं बोल सकता हूं, इसको मैं YQ ले लेता हूं. तो YQ क्या होगा? हमारा ट्रांसवर्सल होगा. एंड YQ इज ट्रांसवर्सल. And YQ is what? And YQ is transversal. And YQ is transversal. अब देखो, अगर ये एंगल आपका 90 है, इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूं, तो ये जो एंगल 2 है ये भी 90 होगा. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. अब देखो, अगर एंगल 2 90 है तो एंगल 3 भी क्या होना चाहिए? 90. एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये क्या होगा आपका? 180 डिग्री. ये क्या होगा आपका? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब क्या था कि एंगल 2 इक्वल टू क्या था? 90 डिग्री. तो एंगल 2 की जगह अगर मैं 90 रखूंगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल 3? इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री. तो एंगल 3 हमारा क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया. अब देखो, एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4. 3 प्लस 4 ये भी 90, ये भी 90 है और ये भी 90. तो गिवन है क्वेश्चन में. 3 प्लस 4 90 डिग्री. नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 is equal to 90 degree plus 90 degree, that is 180 degree. But angle 3 and angle 4 are co-interior, are co-interior angle. समझ में आ रहा है? एंगल 3 and angle 4 are co-interior angle. ये क्लियर हो गया? ठीक है. It implies what? It implies P is parallel to Q. It implies P is parallel to Q. समझ में आया कैसे प्रूव किया? ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड, यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो that is angle 1 is equal to angle 4 is equal to 90 degree each, is equal to 90 degree each. क्लियर हो गया? देखो, ये गिवन था, दिस पार्ट हैज बीन गिवन. हमने क्या किया? इस लाइन को एक्सटेंड किया. फिर हमने कहा कि L जो है वो M के पैरेलल है. अगर L M के पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो जो YQ लाइन है, ये YQ, ये फिर ट्रांसवर्सल होगी. तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 शुड बी इक्वल टू 2. तो हमने कहा 290 होना चाहिए. अगर 290 होगा फिर बाय लीनियर पेयर एक्सियम 3 भी 90 होना चाहिए. अगर 390 होगा तो इसका 4 तो ऑलरेडी 90 है. तो 3 प्लस 4 हमारा क्या हो गया? 180 ऑन द सेम साइड ऑफ. देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, पेयर ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, उनका जो सम है 180 डिग्री है. तो फिर ये क्या है? ये को इंटीरियर एंगल है. एंड को इंटीरियर एंगल ऑलवेज लाइज बिटवीन द टू पैरेलल्स. it means line P should be parallel to line Q. And here we have completed exercise 6.3. From the next class we'll proceed with exercise 6.4. Okay.